हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ लाइफ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और हमने देखा था कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में कंडीशंस थी जो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थी, धीरे धीरे वो चेंज हुई और अर्थ लाइफ के डेवलपमेंट के लिए रेडी होने लगी। तो आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अब जब कंडीशंस चेंज हुई, अर्थ लाइफ के डेवलपमेंट के लिए रेडी हो गई, तो किस तरीके से फर्स्ट लाइफ यानी जो प्रोटो लाइफ है वो कैसे फॉर्म हुई। तो किसी भी लाइफ फॉर्म को डेवलप होने के लिए, उसको सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे वीडियो क्लिप में पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दो यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे वीडियो क्लिप के। और यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से अर्थ में एक अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट डेवलप हुआ जो कि रिडक्टिव नेचर का था। वहाँ पे एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्म हुआ और जिसके रेडिएशन से जो अर्ली लाइफ फॉर्म हुई उसका वो एनर्जी सोर्स बनी। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ये जो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थ के अंडरग्राउंड एनवायरमेंट में फॉर्म हुआ, वो एज अ एनर्जी सोर्स वर्क किया और उसकी हेल्प से बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो अमीनो एसिड, न्यूक्लियो बेसिस, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारी चीजें फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। तो अर्थ का जो अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट था वो रिडक्टिव था और जो सरफेस इन्वायरमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग था। तो ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थी फर्स्ट बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। और यहाँ का इन्वायरमेंट वेट एंड ड्राई साइकिल से भी गुजर रहा था। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो क्लिप में देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये वीडियो क्लिप हम लोग देखते हैं। The early Earth, when the atmosphere prevented sunlight from reaching the surface. Primitive life was about to emerge underground in the cave of a geyser. Uranium ore emitted large amounts of radiation, creating a diverse range of materials and eventually producing the early building blocks of life. Water boiled and rose up to the surface, and the surface water flowed back down into the natural nuclear reactor. The temperature of the geyser water remained below 100 degrees, protecting the newly formed biomolecules. The underground environment was reductive, while the surface environment oxidizing. These conditions were necessary to synthesize biomolecules. In the Earth's Hadean eon, tidal forces were much more pronounced than they are today. Even lakes had significant ebb and flow of water, creating wet and dry cycles. These wet and dry cycles were one of the most crucial factors in producing the building blocks of life. Fatty acids came together, encasing the proto-life molecules. Polymerization progressed under the wet and dry cycles. Eventually, protein-like basic materials,
that could act as catalysts were produced. These molecules circulated between the geyser cave and the surface environment. The interactions of these materials led to more complex biomolecules. Proto-RNA combined with enzyme-like basic materials and evolved into ribozymes, which had the ability to replicate themselves. This laid the groundwork for life to reproduce. Finally, these molecules were enclosed within lipid membranes, forming primitive protocellular life. This was the beginning of life. The Earth's plate tectonics, which had begun with the creation of its ocean, eventually destroyed its primordial continent and subsumed it to the deep mantle. By 4 billion years ago, the mother continent had disappeared, leaving life on the margins of a fragmented landmass. Inside the Earth, a dramatic change was about to begin. The subducted primordial continent descended toward the core mantle boundary. The wealth of radioactive elements in the primordial continent caused the uppermost part of the core to melt. By 4.2 billion years ago, the newly created liquid outer core was strengthening the Earth's magnetic field, protecting the surface environment against solar winds and cosmic rays. As a result, life could exist on the surface environment. The supply of energy and nutrients through material circulation is necessary for life. The essential mechanism to maintain life is an endless flow of electrons. The first proto-life couldn't survive very far from the nuclear geyser due to insufficient energy. Mutations, however, allowed life to evolve. The more resilient life forms were able to adapt and survive in harsh environments. This second stage of proto-life evolved to make use of the sunlight available on the Earth's surface. They developed a metabolism that converted light energy into electrochemical energy. Moreover, they used sugars to store energy for the sunless night hours. The source of energy for life on Earth shifted from nuclear geysers to the sun.
Around 4.1 billion years ago, the ocean was still extremely toxic, killing off most of the proto-life forms within it. Nevertheless, some proto-life forms survived the extreme environment. They developed protective mechanisms to prevent the metallic ions in the ocean water from entering their protocells. This proto-life began coalescing into larger and more complex forms. Modern life forms use only 20 kinds of amino acids. This means our ancestors that used the same amino acids were the ones that survived the mass extinction. Evolution walks a perilous tightrope between continuing and ending. Unstable RNA evolved through ionizing radiation into more durable DNA, making it possible to reliably pass information across generations. And the third stage of proto-life was born. This was the beginning of prokaryotic organisms, the ancestors of today's archaea and bacteria. तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए, प्रोटीन फॉर्म हुई, और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अगर अर्ली लाइफ फॉर्म की हम लोग बात करें, जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई थी, तब भी यही 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे। और आज भी अगर हम लोग बात करें तो नेचर में कोई भी प्रोटीन होती है तो वो इन्हीं 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स से मिलके बनी हुई है। कुछ एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए जिनको प्रोटो आरएनए बोला गया, और प्रोटो आरएनए लाइफ एनकोडिंग मॉलिक्यूल्स थे। और कुछ एक प्रोटीन्स में एज अ बायो कैटलिस्ट होने की प्रॉपर्टी आई, और हमने ये पढ़ा है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोटो आरएनए और एंजाइम जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे फॉर्म हो गया प्रोटो आरएनए प्लस एंजाइम मींस राइबोजाइम। और जो ये राइबोजाइम मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, इसमें एबिलिटी थी रेप्लिकेशन की। दैट मीन्स ये रेप्लिकेशन के थ्रू धीरे धीरे अपनी कॉपीज बना सकता था, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत एसेंशियल प्रॉपर्टी है। तो धीरे धीरे ये सारी प्रॉपर्टीज डेवलप हुई और राइबोजाइम धीरे धीरे एक लिपिड मेम्ब्रेन में क्लोज हो गया। और ये जो फॉर्म हुआ लिपिड मेम्ब्रेन प्लस राइबोजाइम प्रोटीन्स, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना, इसको हमने कहा प्रोटोसेलुलर लाइफ। और दूसरे एंड पे अर्थ का जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। अब उस चेंज होने से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई। उसकी वजह से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस थे, सोलर विंड थे, उनसे भी हमको एक प्रोटेक्शन मिला। तो अब धीरे धीरे इस प्रोसेस होने से तो अभी तक जो लाइफ थी वो अर्थ के अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट में डेवलप हो रही थी, लेकिन अब जो कंडीशंस डेवलप हुई उनकी हेल्प से अब ये सुटेबल कंडीशन आ रही थी कि अर्थ की सरफेस पे भी लाइफ डेवलप हो सके। बट अर्थ की सरफेस पे लाइफ डेवलप अगर होनी है तो उसके लिए जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, जो एज अ एनर्जी सोर्स काम कर रही थी, ये एसेंशियल नहीं थी। अब जब हमारी एनर्जी सोर्स जो कि न्यूक्लियर एनर्जी अभी तक यूज हो रहा था, वो जब एसेंशियल नहीं थी, तो इसके बाद कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए जो कि सनलाइट से को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करने में कैपेबल हुए, यानी लाइट एनर्जी को वो एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर सकते थे। और ग्लूकोज को स्टोर करने की उनमें एक कैपेसिटी हो गई, जिसकी हेल्प से वो
लाइट की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्मेशन करने में कैपेबल थे। और फिर आगे की स्टेज में जो ये अनस्टेबल आरएनए मॉलिक्यूल था, तो आरएनए मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और एक स्टेबल ड्यूरेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। अब डीएनए अगर जब फॉर्म हो गया तो डीएनए, जैसा हमने डिस्कस किया है कि डीएनए इज लाइफ, एंड अब यहाँ पे डीएनए में ही ये प्रॉपर्टी है कि वो इंफॉर्मेशंस को, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर भी कर सकता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर भी कर सकता है। इस स्टेज को हमने कहा थर्ड स्टेज ऑफ प्रोटो लाइफ, या इन ऑर्गेनिजम्स को हमने कहा प्रोकैरियोट्स, जिसमें आर्किया और बैक्टीरिया आते हैं। तो ये आपने देखा किस तरीके से पहले प्रोकैरियोट्स फॉर्म हुए।